Good morning students and welcome to class of ELGA 15. As you all know that our first unit is diversity, in which we are learning about different kinds of people and different kinds of boys and girls around the world. So today we will be reading our third chapter in this unit, which is named Looks Are Not Everything. In this chapter, we will be mainly reading about a small girl who is different than other students, normal students, and how she maintains her dignity and becomes famous in her class. Let's read about her journey. Looks are not everything. First we will read some difficult words of the chapter. First is facial features. What are facial features? हमारे face के different features, different elements of a face such as an eye, nose और lips. हमारे face के different features होते हैं जो nose, eyes, lips, ears, ये हमारे facial features होते हैं. I noticed Ramya's facial features. She had a pointed nose, blue eyes and a wide mouth. ठीक है, ये राम्या के facial feature को describe कर रहा है ये line. Alien क्या होता है? Not known और strange, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो completely strange हो, अजीब हो. Aliens हम उनके लिए यूज़ करते हैं यूजुअली जब कभी किसी और ग्रह से, किसी और प्लैनेट से जब कोई देखा जाता है तो उनके लिए हम एलियन यूज़ करते हैं वर्ड. हरीश विद हिज डिफरेंट कलर हेयर लुक्ड लाइक एन एलियन, मतलब उसका डिफरेंट हेयर कलर था इसलिए वो स्ट्रेंज लग रहा था, अजीब लग रहा था, नॉट नोन, अननोन लग रहा था. नेक्स्ट इज क्राउडेड. इफ़ अ प्लेस इज़ फुल ऑफ पीपल, क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ भड़ाके वाला इलाका, कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत भीड़ है. द प्लेस इज़ फुल ऑफ पीपल, crowded. The market was crowded. Next word is announcement. क्या होती है announcement? हमारे स्कूल में होती रहती है announcements. Make a formal public statement about a fact or giving information about something. किसी चीज़ के बारे में एक public statement देना या फिर information देना about something. ठीक है. The principal made an announcement that there will be a chess competition. एक announcement हुआ कि chess competition होने वाला है, ये एक information थी, right? Next is published writer. कौन होता है published writer? A writer whose work is made available to the public by printing in the form of a book, magazine, newspaper or other document. Published writer होता है जो अपनी बुक को या मैगज़ीन को या अपनी किसी भी राइटिंग को प्रिंट करता है पब्लिकली, लोगों के लिए. सपोज़ आपने कुछ लिखा, कोई पोएम लिखी या कुछ भी लिखा और आपने वो पब्लिकली प्रिंट करवा दिया तो वो यू बिकम पब्लिक राइटर, यू बिकम पब्लिश्ड राइटर. फॉर एग्जाम्पल, सुधा मूर्ति इज़ अ पब्लिश्ड राइटर. Okay, so now let's start the chapter. I will read it for you and I will explain also. Students on demand, I will try to explain it in Hindi as well as English, okay? Amma, I am not going to school here, Priya said. I have never been to school and I never will. Priya and her family had just moved into a new town a week ago. Priya was born with Fletcher-Collins syndrome. It was a condition in which a person's eyes and other facial features looked different than others. This is a story about a small girl, Priya, who has shifted with her family to a new town. अब प्रिया एक बच्ची अपनी फैमिली के साथ एक नए टाउन में शिफ्ट हुई है and she doesn't want to join the school क्योंकि she has never been to school. और वो स्कूल कभी क्यों नहीं गई? बिकॉज शी वॉज बॉर्न विद अ
a different kind of disease called Treacher-Collins syndrome. ये एक डिसेबिलिटी, एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में, किसी में बहुत, इट इज़ अ वेरी रेयर डिसीज स्टूडेंट्स, एंड उसमें क्या होता है कि आपके फेशियल फीचर्स थोड़े अजीब दिखते हैं, अजीब सी आँखें, अजीब से नोज़, थोड़े अजीब दिखते हो आप, डिफरेंट देन नॉर्मल पीपल. She was afraid of going to school. She thought other children would make fun of her because of how she looked. So she had never gone to a school before. Her parents taught her at home. अब तक उसके पेरेंट्स उसे उसके घर में ही पढ़ाते थे. Priya, you need to learn more, बेटा. You are going to school, said her mom. उसकी मॉम ने बोला कि बेटा आपको स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि आपको अब ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत है. Priya angrily stomped into her room. Stomping क्या होती है? हमने बचपन में वीडियोज़ में देखा है, कार्टून्स में देखा है. स्टॉम्पिंग मतलब गुस्से में पैर को ज़मीन पर ज़ोर से रखना, स्टॉम्प करना पैर को, इज़ स्टॉम्पिंग. तो वो ज़ोर से, धम से रूम में चली गई गुस्से में. On the first day of school, Priya got ready and covered most of her face with her long hair. अब नाउ शी हैड टू गो ऑन हर मदर्स इंसिस्टेंस. उसकी मदर ने इंसिस्ट किया तो स्कूल गई, एंड शी गॉट रेडी एंड कवर्ड मोस्ट ऑफ हर फेस. अपना फेस पूरा बालों से ही कवर कर लिया. शी लुक्ड डाउन एज शी वॉकड, और नीचे देखकर चलती रही स्कूल में. नोबडी नोटिस्ड हर अंटिल इट वॉज टाइम फॉर क्लास. पर जब क्लास शुरू हुई, देन पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग दैट शी इज़ डिफरेंट देन अदर्स. Priya had to look up and introduce herself. अब जैसे हम सब इंट्रोडक्शन देते हैं क्लास में, उसको भी इंट्रोडक्शन देना था. The entire class looked shocked. सबको शॉक लग गया एकदम उसे देख के. The students in the desks next to her moved away. Priya was alone for the rest of the day. उसके आसपास भी जो बच्चे बैठे थे वो उससे दूर हो गए, and प्रिया पूरा दिन अकेली ही रही. The next day as she was walking in the corridor to go to library, she was stopped by 3 girls. She looked up and one of the girls said, "Why are you here, alien?" अब वो 3 लड़कियां उसे देखकर रुकी कॉरिडोर में और उसे चिढ़ाने लगी. यहाँ क्यों आई हो एलियन? एलियन हमने पढ़ा है ना, स्ट्रेंज, अजीब. या another one said, "Get out of our school." दूसरी ने बोला, बाहर निकल जाओ हमारे स्कूल से. Priya felt very sad and alone. उसे बहुत बुरा लगा. This is why she did not want to come to school. She pushed past them and ran into the school building. वो वहाँ से भागकर स्कूल में चली गई. As she ran, she could hear them laughing behind her. वो लोग उसके पीछे हंस रहे थे. During recess, Priya walked out into the crowded hall. As soon as she came close to anyone, that person would scream and रन अवे. प्रिया एक क्राउडेड हॉल में जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उसमें गई, तो वहाँ पे सब लोग उसे देखकर इधर उधर भागने लगे. प्रिया फेल्ट एंग्री एंड सैड. प्रिया को गुस्सा भी आया और उसे बहुत दुख भी हुआ. शी वॉन्टेड टू गो बैक होम, बट देयर वॉज इंग्लिश क्लास आफ्टर रिसेस. रिसेस के बाद इंग्लिश की क्लास थी. इंग्लिश वॉज प्रियाज फेवरेट सब्जेक्ट. In the class, the teacher asked everyone to write an essay about their favorite place in the world. Priya immediately took out her notebook and began writing. प्रिया की इंग्लिश टीचर ने उनको, सब स्टूडेंट्स को, एक ऐसे लिखने को बोला. प्रिया ने फटाफट अपनी नोटबुक निकाली and she started writing. She finished in time and submitted the essay. Here, this girl is shown as Priya and everyone is away from her and looking at her in a weird way. Okay, so what happened next day? The next day in the English class, the teacher said, "Class, stop your work." Everyone looked up in surprise. Teacher had never told them to stop before. I would like to read to you one of the essays that a student turned in yesterday, she said. उन्होंने कहा, मैं आपको एक ऐसे पढ़ के सुनाना चाहती हूँ उस स्टूडेंट का जो कल ही आया है. Teacher began to read. Priya immediately recognized that it was her essay. प्रिया ने फटाफट समझ लिया कि ये मेरा ही ऐसे है. Everyone was amazed.
What a beautiful essay. Who wrote that? Someone asked. It was one of the girls who had insulted Priya yesterday. इनमें से एक लड़की ने पूछा, What a beautiful essay. किसने लिखा? ये वो लड़की थी जिसने कल प्रिया की इंसल्ट की थी. प्रिया डिड, टीचर सेड. टीचर ने बोला प्रिया ने लिखा है. एवरीवन टर्न टू लुक एट प्रिया, बट प्रिया वॉज स्टिल थिंकिंग ऑफ द वर्ड ब्यूटिफुल. प्रिया अभी भी सोच रही थी कि मेरे ऐसे को किसी ने ब्यूटिफुल बोला. नोबडी हैड एवर यूज दिस वर्ड फॉर एनीथिंग एसोसिएटेड विद हर. किसी ने भी आज तक उसकी किसी भी चीज़ को ब्यूटिफुल नहीं बोला था. आफ्टर द क्लास दैट डे अ गर्ल नेम्ड दिशा केम अप टू प्रिया. I loved your writing. I wish I could write like that, she said. Priya thanked her for the compliment. She told Disha, I love to write. I want to be a writer. She then began explaining her passion to Disha. They both talked for the entire break until it was time for class again. Priya was happy that she had found someone who did not treat her badly. Soon she and Disha became the best of friends. One day, Disha showed Priya an advertisement. A book company wanted to publish stories of children writers. प्रिया खुश थी कि उसे कोई मिल गया जो उसको अच्छे से ट्रीट करता था. They both became best friends. One day Disha came और उसने दिखाया कि एक एडवर्टीज़मेंट है जहाँ एक कंपनी है जो बच्चों की लिखी स्टोरीज़ को पब्लिश करना चाहती है. दिशा कोक्स्ड प्रिया टू सेंड हर नेम फॉर दिस. कोक्स्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? कोक्स्ड इज किसी को कन्विंस करना या किसी को बोलना कोई काम करने के लिए, इंसिस्ट करना. ठीक है. दिशा कोक्स्ड प्रिया टू सेंड हर नेम फॉर दिस, बट प्रिया वॉज नॉट श्योर. प्रिया को थोड़ा डाउट आ रहा था. She told Disha that she didn't know what she should write about. Your story, responded Disha. तो प्रिया ने कहा पता नहीं मैं क्या लिखूँगी, किस बारे में लिखूँगी. तो दिशा ने बताया, दिशा ने उसको एक आइडिया दिया, अपनी स्टोरी लिखो. योर स्टोरी. Why don't you write about yourself? How people treat you because you look different and how you feel about it, suggested Disha. उसने उसको आइडिया दिया कि तुम अपनी स्टोरी क्यों नहीं लिखती, कि लोग तुम्हें देखकर कैसे ट्रीट करते हैं एंड तुम कैसे फील करती हो उसके बारे में. उसने सजेशन दिया. प्रिया फॉलोड हर फ्रेंड्स एडवाइस. शी कंप्लीटेड हर स्टोरी एंड सेंट इट टू द बुक कंपनी. अ वीक लेटर द प्रिंसिपल मेड एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन द मॉर्निंग असेंबली. प्रिया ने अपनी फ्रेंड की एडवाइस ली और अपनी स्टोरी को कंप्लीट किया और उसको बुक कंपनी को भेज दिया. एक हफ्ते बाद प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल सर ने उस स्कूल के एक अनाउंसमेंट किया. अनाउंसमेंट बताया था, राइट, इन द मॉर्निंग असेंबली. शी ब्रोक द न्यूज़ दैट प्रिया स्टोरी वॉज सिलेक्टेड बाय द बुक कंपनी. अच्छा, प्रिंसिपल मैम थी उनकी, उन्होंने न्यूज़ दी सबको कि प्रिया की स्टोरी बुक कंपनी ने सिलेक्ट कर ली थी. दिस मेंट दैट शी वॉज गोइंग टू बी अ पब्लिश्ड राइटर सून. एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड. उन्होंने कहा अब ये पब्लिश्ड राइटर बन जाएगी. हर क्लासमेट्स फेल्ट अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर. पब्लिश्ड राइटर स्टूडेंट्स बताया था आपको, जो एक पब्लिक राइटर बन जाता है, मतलब जिसकी राइटिंग पब्लिक मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में छपती हैं, वो ही बिकम्स अ पब्लिश्ड राइटर. हर क्लासमेट्स फेल्ट अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर. इन द रिसेस दे केम अप टू हर एंड अपोलोजाइज्ड. अपोलोजाइज मतलब सॉरी फील करना. तो उसके क्लासमेट्स को बहुत बुरा लगा उनके साथ जैसे वो बिहेव कर रहे थे, और रिसेस में उसको आके अपोलोजाइज़ किया, उससे माफ़ी मांगी. Priya forgave them. Soon her classmates realized that she was both funny and kind. She had interesting ideas and loved to share them. Priya made more and more friends at school. Priya के और फ्रेंड्स बनते गए और सबको रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ही फ़नी और काइंड है. Some months later, her book was published. It was titled Not an Alien. Her friends read the book and loved it.
ओके, नाउ ऑल आर बिकमिंग फ्रेंड्स हियर. एंड उसके बुक का क्या टाइटल था? नॉट एन एलियन. शी वॉन्टेड टू प्रूव दैट आई एम नॉट एन एलियन, आई एम जस्ट एज नॉर्मल एज ऑल people are, only I look a little different. All right students, good story, right? I hope you like the story and you have to do its question answers in the workbook. I have already sent you the answer keys. Okay, all right, see you with the next chapter. Happy learning. Thank you.